to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss bumper MCQ 1 related to the office procedure of central government offices. And this office procedure, according to the Central Secretariat Manual of Office Procedure, CSMOP, it is useful for different central government exams. This part is very important one. In all type of central government exams, definitely question is coming from the office procedure. So please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely this session would be interesting one, and in this part I will discuss around 65 MCQs, and session would be interesting one. You can get many informations, and also I clarify about some files, and I discuss about some office procedure very clearly. So you see, it is follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru, so that you can get all video links systematically. My WhatsApp number is there. It is 8327782034. If any query is there, also you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss very important 65 MCQs related to the office procedure in central government offices. Question number 1, you see, it is given what is the primary purpose of the Central Secretariat Manual of Office Procedure. You know, always central government offices follow Central Secretariat Manual of Office Procedure. So what is the main primary purpose? 4 options: recruitment of staff, regulating financial transactions, standardizing office work procedures, conducting parliamentary debates. So option C is the correct answer. Office procedure is very important one. Official work procedure is very important one. You know, the draft, note sheet, guard file, demi-official file, suppose unnumbered official notes, many things are there. It is very important one. So option C is the correct answer. It is standardizing office work procedures. Option C is the correct answer. Question number 2, a note in government office procedure refers to. जो नोट होता है, एक नोट सीट होता है. नोट सीट बेसिकली ग्रीन कलर का पेज होता है नोट सीट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम हायर अथॉरिटी को कोई प्रपोजल देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, उनका ओपिनियन हमको चाहिए. कोई प्रपोजल हम दे रहे हैं हायर अथॉरिटी को और उनका ओपिनियन चाहिए, उनका सजेशन चाहिए. कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो इस केस में हम नोट सीट में उसको मेंशन करते हैं. ठीक है, नोट सीट बेसिकली जो ग्रीन कलर का पेज होता है, एक नोट होता है, एक सीट ऑफ पेपर. जो सीट ऑफ पेपर है, सीट ऑफ पेपर के ऊपर जो एक पर्टिकुलर स्पेस में हम लिखते हैं, वही नोट है. और नोट सीट के बारे में अभी मैं बताया. नोट सीट हम व्हेन एक्चुअली नोट सीट इज इशूड. Suppose note sheet is issued basically at the time of proposal, suggestion, opinion of higher authority. तो जब हायर अथॉरिटी को हम मांगेंगे कि ये हमारा प्रपोजल है, हमको इसी रिलेटेड मैटर में ओपिनियन चाहिए, कि इसी रिलेटेड मैटर में सजेशन चाहिए, तब हम नोट शीट में एक्चुअली उनके सामने पेश करेंगे. ठीक है, तो वही क्वेश्चन दिया है. नोट इन गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, a communication between two ministries, an internal recording of opinion or suggestion, a formal letter sent outside the organization. Option C, an internal recording of opinion or suggestion. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी ओपिनियन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई प्रपोजल दे रहे हो, तो उस केस में आप नोट शीट पेश करोगे हायर अथॉरिटी के सामने. देन हायर अथॉरिटी उसमें मेंशन करेंगे, उनका ओपिनियन देंगे, उनका सजेशन देंगे, जिस रिलेटेड मैटर में हम नोट शीट लिखा है हायर अथॉरिटी को. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर क्लियरली देख लीजिए, नोट के ऊपर थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए नोट इज ए रिटन रिकॉर्ड. इट इज ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रपोजल, ओपिनियन और डिसीजन मेड बाय एन ऑफिसर इन ए फाइल. ठीक है, जब कोई मैटर के ऊपर हम प्रपोजल, ओपिनियन और डिसीजन हमको चाहिए हायर अथॉरिटी से,
It represents the logical reasoning, facts and rules behind a recommendation. It is used to process a case and is addressed to a higher officers in the decision making hierarchy. It is official and formal and forms part of the decision making chain. Example दिया है, an undersecretary writes a note suggesting approval of a policy and submits it to the deputy secretary for consideration. जब अंडर सेक्रेटरी सपोज कोई पॉलिसी के ऊपर अप्रूवल चाहिए तो वो नोट शीट पेश करेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी के सामने. ऑलवेज हम हायर अथॉरिटी के सामने पेश करेंगे कि ये पॉलिसी है, उसको उसका अप्रूवल चाहिए, कि ये पॉलिसी है उसके ऊपर ओपिनियन चाहिए, कि ये पॉलिसी है उसके ऊपर सजेशन चाहिए. तो हम हायर अथॉरिटी को पेश करेंगे, हम उसको नोट शीट में देंगे. ठीक है, नोट शीट एक्चुअली पेपर है, पेपर को हम नोट शीट बोलते हैं, ग्रीन कलर पेपर. उसके ऊपर जो स्पेस में हम नोट करते हैं वही नोट है, एक रिटन रिकॉर्ड है. ठीक है, नोट शीट वेरी कॉमन थिंग. नोट शीट इज द फिजिकल और डिजिटल शीट और सेक्शन ऑफ द फाइल वेयर ऑल नोट्स आर रिटन. तो जिस शीट के ऊपर हम नोट एक्चुअली जस्ट वी राइट डाउन द नोट, उसी को हम नोट शीट बोलेंगे. यहां पर कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट शीट ग्रीन कलर है. कोई कॉरेस्पॉन्डेंस पेजेस, रिसिप्ट्स और लेटर्स, कोई लेटर हम रिसिप्ट कर रहे हैं और लेटर इशू कर रहे हैं, ये सब व्हाइट पेजेस है. ड्राफ्ट जो है वो येलो कलर का है. याद रखिए, ड्राफ्ट में करेक्शन होगा. जब ड्राफ्ट लिखा जाएगा, ड्राफ्ट को फिर हम हायर अथॉरिटी के पास पेश करेंगे. ठीक है, ड्राफ्ट को वो चेक करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर एक्चुअली मॉडिफिकेशन होने के बाद वो लेटर इशू होगा. ठीक है, वो येलो कलर का होता है. ऑफिस ऑर्डर्स और ऑफिशियल मेमोरेंडम्स ऑफन व्हाइट होता है. कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो पिंक और ब्लू, डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी. ठीक है, सेंसिटिविटी को देखकर पिंक और ब्लू में मेंशन होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स. तो ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नोट शीट जो ग्रीन होता है, ड्राफ्ट येलो होता है. ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है. ड्राफ्ट्स के ऊपर मैं थोड़ा आगे में बताऊंगा. ड्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. व्हाट इज द टर्म DFA स्टैंड फॉर इन गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस? सो DFA इट इज ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन है. देखिए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल रिफर्स टू ए प्रिलिमिनरी वर्सन ऑफ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन सच एज लेटर की ऑफिस मेमोरेंडम और ऑर्डर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ए जूनियर ऑफिसर एंड सबमिटेड टू ए सीनियर ऑफिसर फॉर अप्रूवल बिफोर इट इज फाइनलाइज्ड एंड इशूड. जब एक जूनियर ऑफिसर एक लेटर लिखता है, कोई ऑफिस मेमोरेंडम लिखता है कि ऑर्डर लिखता है, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय जूनियर ऑफिसर एंड अगेन इट इज सबमिटेड टू ए सीनियर ऑफिसर फॉर अप्रूवल. ओके, वो अभी इशू नहीं हुआ है मगर सीनियर ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए. तो सीनियर ऑफिसर क्या करेंगे, अप्रूविंग ऑफिसर उसका एक्यूरेसी देखेंगे, लेटर का कि मेमोरेंडम का, ऑर्डर का एक्यूरेसी देखेंगे, उसका लैंग्वेज टोन चेक करेंगे, पॉलिसी अलाइनमेंट को देखेंगे, करेक्ट फॉर्मेट है कि नहीं चेक करेंगे. तो उनका अप्रूवल के बाद वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा कि इशू होगा. ठीक है, ये ड्राफ्ट है. तो ड्राफ्ट एक्चुअली जूनियर ऑफिसर प्रिपेयर करता है, फिर सीनियर ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए. सीनियर ऑफिसर उसको चेक करेंगे, क्या उसका लैंग्वेज है, क्या उसका एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स है, क्या पॉलिसी अलाइनमेंट है, क्या करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं. फिर सीनियर ऑफिसर उसको अप्रूव करने के बाद वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, इशू होगा. ठीक है, क्लियर. ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए. नेक्स्ट चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इन गवर्नमेंट ऑफिसेस which of the following registers is used to maintain the daily incoming and outgoing of files? एक रजिस्टर मेंटेन होता है, बहुत कुछ फाइल आ रहा है और बहुत कुछ फाइल जा रहा है, तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि बेसिकली which type of files actually it is coming and which type of files actually they are going outside. तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, what type of registers actually should be maintained for incoming and outgoing of files? It is movement register. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग फाइल से वो मेंशन होगा मूवमेंट रजिस्टर में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सेंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम मिनिस्ट्री? सपोज एक कम्युनिकेशन जा रहा है वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम मिनिस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे, ये इंटर डिपार्टमेंटल नोट है. आप याद रखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एक चीज है, एक ऑफिशियल मेमोरेंडम है और इंटर डिपार्टमेंटल नोट है. जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है, मैं उसको थोड़ा, ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूं.
जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है उसमें क्या है, सपोज एक डिपार्टमेंट कोई पॉलिसी कोई रूल्स उसको क्लैरिफाई करता है अदर डिपार्टमेंट को, ठीक है, पॉलिसी रूल्स गाइडलाइंस गवर्नमेंट का उसको क्लैरिफाई करता है अदर डिपार्टमेंट को, तब वो ऑफिशियल मेमोरेंडम होगा। मगर कोई नॉर्मल लेटर हम इशू करेंगे, नॉर्मल ऑर्डर दे देंगे, वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट जाएगा, वो इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इंटर वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल नोट हो सकता है, जो आईडी नोट बोलते हैं ये हो सकता है, और ऑफिस मेमोरेंडम हो सकता है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप देखा होगा जब डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जब अब बहुत सारी डिपार्टमेंट एक क्वेरी मांगते हैं, सपोज एलटीसी के ऊपर लीव ट्रैवल कंसेशन के ऊपर वो क्वेरी मांगते हैं, सपोज डाउट होता है तो डीओपीटी को हम लिखते हैं कि हम उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, तब डीओपीटी उसको क्लैरिफाई करता है ऑफिस मेमोरेंडम से, ठीक है। तो कोई रूल्स कोई पॉलिसी कोई गाइडलाइन से जब वन डिपार्टमेंट अनदर डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करता है तब ऑफिस मेमोरेंडम है। अदरवाइज जैसे फॉर्मल लेटर जाता है वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट, वो इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। तो यहां पर वही है, कम्युनिकेशन सेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, तो इट इज इंटर डिपार्टमेंटल नोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देख लीजिए इंटर डिपार्टमेंटल नोट और ऑफिस मेमोरेंडम में अभी क्लैरिफाई किया, just simply within one communication sent from one department to another department within same ministry, it is an internal form of official communication, it is id note है, interdepartmental note है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, जब एक डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करेगा, कम्युनिकेट करेगा पॉलिसीज के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, ठीक है, और क्लैरिफिकेशंस विद इन मिनिस्ट्रीज और बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये एक फॉर्मल अथॉरिटेटिव मैनर होता है, वो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। सपोज आप एक डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करेगा कोई पॉलिसीज के ऊपर, कोई डिसीजंस, कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर्स, ये ऑफिस मेमोरेंडम होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज अभी हम एक लीव रूल के ऊपर सभी डिपार्टमेंट ने डीओपीटी को, मेनी डिपार्टमेंट्स दे हैव रिटन टू द डीओपीटी टू क्लैरिफाई एक्चुअली द पर्टिकुलर सपोज थिंग रिलेटेड टू द लीव रूल। जब उसको डीओपीटी ने क्लैरिफाई करेगा वो ऑफिस मेमोरेंडम इशू होगा, और ऑफिस में जस्ट मेमोरेंडम में डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग उसको क्लैरिफाई करेगा कि एक्चुअली ये जो क्वेरी था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्चुअली ये रूल है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करेगा कोई रूल्स के ऊपर, कोई पॉलिसीज के ऊपर, तब ऑफिस मेमोरेंडम इशू होगा। अदरवाइज जब नॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई नॉर्मल लेटर वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट जाता है, वो आईडी नोट है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। व्हिच कलर ऑफ स्लिप इज जनरली यूज्ड फॉर अर्जेंट डाक इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस? अर्जेंट डाक के ऊपर पूछा है, कौन सा कलर ऑफ स्लिप होगा? ये रेड कलर का स्लिप होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब अर्जेंट डाक का जो स्लिप होगा कलर ऑफ स्लिप रेड रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ रिसिप्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस अकॉर्डिंग टू सीएसएमओपी? जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में, क्या हम जब कोई लेटर रिसीव करते हैं उसको हम कितना दिन के अंदर, विद इन हाउ मच टाइम लिमिट एक्चुअली वी कैन डिस्पोज द रिसिप्ट? कोई हम लेटर रिसीव करते हैं तो उसको हम कितना दिन के अंदर उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट पूछा है, वो as soon as possible, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, as soon as possible, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द सेक्शन? एक सेक्शन में डिसिप्लिन डेकोरम कौन मेंटेन करेगा? ये बहुत कॉमन है, जो सेक्शन ऑफिसर है, जो पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर है, एक्चुअली अंडर हिज और हर गाइडेंस एक्चुअली द सेक्शन विल ऑपरेट स्मूथली। सो the section officer actually he or she has the responsibility to maintain discipline and decorum in the section. Option A is the correct answer. Question number 9, in office files the part that contains the running summary of facts, ऑफिस फाइल्स में एक रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स होता है, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वो नोट्स पोर्शन बोलेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑफिस फाइल्स द पार्ट that contains the running summary of facts is called notes portion. Option C is the correct answer. Question number 10 को चलेंगे। When a communication is marked confidential, it should be
जब एक कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, इट शुड बी ओपनड ओनली बाय द एड्रेसी, जिसको एड्रेस किया गया है, कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है, जिसको एड्रेस किया है वही एड्रेस ही उसको ओपन करेगा। डाक रिलेटेड मैटर में देखिए, कोई कॉन्फिडेंशियल होता है तो जिस एड्रेस के नाम पे लेटर जा रहा है और उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा है वही एड्रेस ही उसको ओपन करेगा। ओपन ओनली बाय द एड्रेस ही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज CR स्टैंड फॉर इन द गवर्नमेंट ऑफिस कंटेक्स्ट? तो गवर्नमेंट ऑफिस कंटेक्स्ट में CR क्या है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डीओ लेटर इज इशूड व्हेन? एक डीओ लेटर होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं। डेमी ऑफिशियल लेटर, ये लेटर क्या है? ये लेटर ऑफिसर टू ऑफिसर इनफॉर्मल लेटर है। ऑफिसर टू ऑफिसर, एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, एक इनफॉर्मल लेटर एक ऑफिसर ने अदर ऑफिसर को एक इनफॉर्मल लेटर देता है। सपोज कुछ उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल लेटर है। जब एक ऑफिसर और एक ऑफिसर को लेटर देता है तो उसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है? इसको भी क्लैरिफाई करेंगे आगे में। तो यहां पर बहुत इजी है, ये डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर इज यूज्ड व्हेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एट हाई लेवल। हाई लेवल मींस जो हायर ऑफिसर से, ये हायर ऑफिसर के बीच में एक कम्युनिकेशन है। ओके, एक हायर ऑफिसर अदर हायर ऑफिसर को क्या करेगा? एक लेटर इशू करेगा और वो एक कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो वो एक लेटर इशू करेगा। वो इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, वो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एट अ हायर लेवल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी देखिए, आप मैं क्लैरिफाई थोड़ा किया। डेमी ऑफिशियल लेटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डीओ लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर इज अ टाइप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक पर्सनल होता है ये, used in central government offices when a matter needs to be dealt with personally and with a touch of informality, often to convey important, sensitive and urgent issues directly between officers. So वो दो ऑफिसर के बीच में कोई एक सपोज इंपॉर्टेंट इश्यू है, एक ऑफिसर और एक दूसरा ऑफिसर को एक लेटर दे देगा, इनफॉर्मल लेटर दे देगा, और कुछ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, कुछ अर्जेंट मैटर के ऊपर उसको एक सजेशन चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीका का लेटर को डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये हायर लेवल में चलता है ये लेटर, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, उसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSMOP इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस? ये तो बहुत इजी है कि इसी मैनुअल के हिसाब से जो ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इट इज ऑपरेटिंग इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ए डीलिंग असिस्टेंट? डीलिंग असिस्टेंट का क्या रोल है? फाइनल डिसीजन मेकर ऑन ऑल फाइल्स, मेंटेनिंग स्टॉक रजिस्टर्स, इनिशियल एग्जामिनेशन एंड नोटिंग ऑन फाइल्स, सुपरवाइजिंग ऑफिस मेंटेनेंस स्टाफ। तो ऑप्शन सी, इनिशियल एग्जामिनेशन एंड नोटिंग ऑन फाइल्स, फाइल्स के ऊपर जो नोटिंग होता है वो डीलिंग असिस्टेंट का काम है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, when a letter is sent to more than one department it is termed? जब एक लेटर हम इशू करेंगे मोर देन वन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेम लेटर इशू किया जाएगा मोर देन वन डिपार्टमेंट, उसको बोलेंगे हम सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर इशू होता है, एक पर्टिकुलर लेटर वो इशू होता है मोर देन वन डिपार्टमेंट को, उसको हम सर्कुलर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड बिटवीन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर पर्सनल अटेंशन? अभी मैं बताया था, पर्सनल अटेंशन के लिए जब सेम कैडर का ऑफिसर, चाहे विद इन सेम डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट द रैंक ऑफ द ऑफिसर्स रिमेन सेम, एक ऑफिसर और एक ऑफिसर को एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर दे देगा, कोई पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर उसको क्लैरिटी चाहिए, तो उसको डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर हम बोलेंगे। अभी मैं बताया था, डेमी ऑफिशियल लेटर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर है, इट मींस बिटवीन द ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफ द सेम रैंक। तो एक ऑफिसर, उसको कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ इश्यूज के ऊपर, कुछ पॉलिसी के ऊपर, सपोज कुछ अर्जेंट मैटर में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर दे देगा। ओके,
और एक ऑफिसर को सेम डिपार्टमेंट में कि अदर डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसको उसी इशू के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, और ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर बोलेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल। एक नोट पोर्शन होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? जो भी हम लेटर आता है, सब आप देखेंगे बहुत प्रकार का अभी गूगल लिंक आ रहा है, ठीक है, तो इमीडिएटली जब गूगल लिंक आएगा हम उसको मेंशन करके रखेंगे, स्टिपुलेट टाइम होगा कि गूगल लिंक को इसी मैटर के ऊपर ये लिंक है, उसको आपको फिलअप करना है विद इन स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा जो लेटर्स हम रिसीव करते हैं, ठीक है, लेटर का जवाब देते हैं, ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल इंक्लूड्स ऑप्शन सी कॉपीज ऑफ लेटर्स एंड रिप्लाईज। हम लेटर्स उस आप देखेंगे गूगल लिंक रहेगा और नीचे में लेटर रहेगा, लेटर में क्लियरली मेंशन होगा फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली you fill the Google link. In this matter, one Google link is there, so please you fill the Google link according to this matter. तो लेटर होगा, लेटर को हम रखेंगे, फिर स्टिपुलेट टाइम के अंदर लिंक को फिलअप करेंगे। तो कोई लेटर हम लेटर कॉपी रखेंगे और उसका रिप्लाईज देंगे, वही कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो फाइल में दो पोर्शन होता है, एक नोट्स होता है, नोट्स जो पॉलिसी सजेशंस ओपिनियन हमको चाहिए, और एक पोर्शन कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई लेटर हम रिसीव करेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है, ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड रूम इन गवर्नमेंट ऑफिसेस? रिकॉर्ड रूम का मेन फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड रूम, ऑप्शन सी आप देख लीजिए, प्रिजर्विंग क्लोज्ड फाइल्स एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स। जो क्लोज्ड फाइल्स है, फाइल क्लोज हो चुका है, उसको प्रिजर्व करेंगे, और कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करेंगे, वही रिकॉर्ड रूम है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए पास्ट रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड रूम को जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो फाइल्स क्लोज हो चुका है सभी तरीके का फाइल होता है और कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच टाइप ऑफ डाक इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसी इमीडिएटली इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग आवर्स? कोई भी इस तरीके का डाक है जो एड्रेसी को इमीडिएटली डिलीवर किया जाएगा, चाहे वर्किंग आवर हो कि नहीं, सपोज बियॉन्ड ऑफ वर्किंग आवर्स ऑल्सो, बट कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, और उसको हम एड्रेसी को देना ही देना है, डिलीवर करना है। तो इमीडिएट और मोस्ट इमीडिएट डाक, इसको याद रखिए, जो डाक बहुत इमीडिएट होता है और मोस्ट इमीडिएट डाक है, उसको हम एड्रेसी को डिलीवर करेंगे, और कोई वर्किंग आवर्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग आवर्स, क्योंकि इंपोर्टेंट और मोस्ट इमीडिएट और मोस्ट इमीडिएट डाक जो है एड्रेसी को ही डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है और इमीडिएट उसको दिया जाएगा, तो कोई वर्किंग आवर्स उसके लिए नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीडिंग आउट ओल्ड फाइल्स इन ए सेक्शन? सेक्शंस में जो ओल्ड फाइल्स है उसको हम वीड आउट करेंगे, तो उसका रेस्पॉन्सिबल किसका रेस्पॉन्सिबल है? सेक्शन ऑफिसर, रिकॉर्ड कीपर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की डीलिंग असिस्टेंट? तो वीडिंग आउट ओल्ड फाइल्स भी सेक्शन ऑफिसर अप्रूवल करेंगे, अप्रूवल करने के बाद जो रिकॉर्ड कीपर है वो उसको वीड आउट करेगा। विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेक्शन ऑफिसर हम वीड आउट नहीं कर सकते, रिकॉर्ड कीपर नहीं कर सकता वीड आउट, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेक्शन ऑफिसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक रूटीन फाइल होता है, जनरली कंटेंट। रूटीन फाइल में क्या है, जो भी मैटर्स डेली मैटर्स है, ठीक है, उसी को हम रूटीन फाइल उसको कंटेन करता है, जो डेली मैटर्स हम परस्यू करते हैं। तो हो गया मैटर्स, ऑप्शन सी मैटर्स ऑफ डेली और स्टैंडर्ड नेचर। ओके, जो मैटर्स एक्चुअली डेली बेसिस में आता है और उसका जवाब दिया जाता है, ये रूटीन फाइल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द अब्रेविएशन वीआईपी रिफरेंस यूजुअली इंप्लाइज। जो वीआईपी रिफरेंस है, बेसिकली रिफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी रिफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग डिग्निटरीज। जब हम कोई रिफरेंस रिसीव करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर से और हाई रैंकिंग डिग्निटरीज से, उसी को हम वीआईपी रिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द करेंट फाइल इन ऑफिस प्रोसीज्योर रिफर टू। ये करेंट फाइल क्या होता है ऑफिस प्रोसीज्योर में? जो फाइल एक्टिवली अभी काम कर रहा है, जो फाइल अभी एक्टिवली काम कर रहा है उसी को हम करेंट फाइल बोलेंगे, नहीं? तो फाइल बीइंग एक्टिवली वर्कड ऑन, जो फाइल अभी एक्टिवली काम कर रहा है उसके ऊपर वर्क चल रहा है फाइल में अभी, इसमें ही हम सपोज नोट शीट दे रहे हैं, हमको जवाब मिल रहा है,
तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है, बेसिकली एक्टिव वर्क चल रहा है, वही फाइल को हम करेंट फाइल बोलेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टिपिकल रिटेंशन पीरियड फॉर कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। जो कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स होता है उसको हम कितना दिन तक रिटेन कर सकते हैं? ओके, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में कितना दिन रिटर्न कर सकते हैं? तो कैटेगरी ए मींस 25 ईयर्स और परमानेंटली। ऐसा कुछ हिस्टोरिक रिकॉर्ड है और कुछ लीगल रिकॉर्ड्स है तो उसको हम परमानेंटली रखेंगे, नहीं तो 25 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए क्लैरिटी दिया गया है कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स के ऊपर, डिटेल्स में थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। परमानेंट रिकॉर्ड्स दैट आर टू बी प्रिजर्व्ड इंडेफिनाइटली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, हिस्टोरिकल और रिसर्च वैल्यू। ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, लीगल रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और कुछ रिसर्च वैल्यू है, उसको इंडेफिनाइटली प्रिजर्व किया जाएगा, वो कैटेगरी ए में आएगा। तो उसको अपन इवेंचुअली उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, NAI, इसको याद, इस तरीका का रिकॉर्ड को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। आप देखिए कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यहां पर चला जाता है, NAI, कोई लीगल है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडेफिनाइट पीरियड के लिए परमानेंटली उसको नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आप देखिए यहां पर क्लियरली दे दिया डेफिनेशन एज पर रिकॉर्ड रिटेंशन, परमानेंट रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड परमानेंटली, आर्चिव जो दे दिया, आर्चिवल वैल्यू, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो परमानेंट हो जाता है। जो कैटेगरी ए का, कैटेगरी बी का कुछ टेम्पोररी रिकॉर्ड्स मीडियम टर्म, जो 5 to 10 ईयर्स तक हम प्रिजर्व करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। और कैटेगरी सी टाइप ऑफ रिकॉर्ड रूटीन रिकॉर्ड्स होता है शॉर्ट टर्म वैल्यू। कैटेगरी बी है मीडियम टर्म, कैटेगरी सी रूटीन रिकॉर्ड्स विद शॉर्ट टर्म वैल्यू 1 to 3 ईयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जो नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो सब कैटेगरी ए में आता है, उसको प्रिजर्व परमानेंटली। कैटेगरी बी एक्चुअली मीडियम टर्म है, टेम्पोररी रिकॉर्ड्स यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। और कैटेगरी सी कुछ शॉर्ट टर्म वैल्यू का रिकॉर्ड है, रूटीन रिकॉर्ड्स, जिसको हम 1 to 3 ईयर्स हम रिटर्न करेंगे। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स ये सब है, इसको इंडेफिनाइटली परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है। कैबिनेट डिसीजंस, annual reports of ministries, files related to formulation of policy, final reports of commissions or committees, treaties, memorandum of understandings with other countries, MOUs, notifications of constitutional importance, records concerning national security, पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, ये सब रिकॉर्ड जो है परमानेंटली उसको प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये सब कैटेगरी ए में आ जाता है, ठीक है, क्लियर। कैटेगरी बी के ऊपर देखेंगे। कैटेगरी बी में बताया जो कुछ कैटेगरी बी का रिकॉर्ड 5 to 10 ईयर्स के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है कि लीगल पर्पजेस होता है, उसको 5 to 10 ईयर्स के लिए प्रिजर्व किया जाता है, देन उसको रिव्यू करने के बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर एग्जांपल्स देख लीजिए, कैटेगरी बी रिकॉर्ड्स जिसको हम 5 to 10 ईयर्स तक प्रिजर्व करेंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टेट गवर्नमेंट्स और PSUs, ऐसा कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है, कुछ लेटर का जवाब दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। फाइल कॉपीज ऑफ इंटर मिनिस्टरियल कम्युनिकेशन, वर्किंग पेपर्स फॉर स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स अनलेस हिस्टोरिक, records of disciplinary proceedings, non-president sitting, office copies of circulars, reports, minutes, बजट एंड एक्सपेंडिचर फाइल्स, नॉन पॉलिसी लेवल। पॉलिसी लेवल है तो वो चला गया कैटेगरी ए में, नॉन पॉलिसी लेवल कोई बजट एंड एक्सपेंडिचर फाइल्स है, ये सब कैटेगरी बी में आ जाता है। 5 to 10 ईयर्स के लिए रिटर्न किया जाएगा और उसको रिव्यू करने के बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है। और कुछ शॉर्ट टर्म नेचर का, रूटीन नेचर का रिकॉर्ड है जो 1 to 3 ईयर्स के लिए हम रिटर्न करेंगे और उसको रिव्यू करने के बाद उसको वीड आउट किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म वैल्यू। तो उसका भी एग्जाम्पल से कैटेगरी सी रिकॉर्ड, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। रूटीन रिमाइंडर्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स, ऑफिस अटेंडेंस रजिस्टर्स आफ्टर ऑडिट, ऑफिस अटेंडेंस रजिस्टर से ऑडिट के बाद उसको हम वीड आउट करेंगे। लीव एप्लीकेशंस आफ्टर बीइंग एंटर्ड इन सर्विस बुक, सर्विस बुक में जब आप लीव एप्लीकेशन देते हो, जो कितना लीव आप ले लिया उसको माइनस करने के बाद सर्विस बुक अप टू डेट होता है, तो वो लीव एप्लीकेशंस को वीड आउट करना है। डुप्लीकेट और एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ सर्कुलर्स और मेमोज, कुछ डुप्लीकेट सर्कुलर से कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ मेमोज है
ड्राफ्ट्स, नोट्स और रिफरेंसेस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनल डिसीजन, ऐसा कुछ ड्राफ्ट से, नोट से, रिफरेंसेस से जिसमें कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। टेम्पोररी गेट पासेस, विजिटर लॉग्स, एक्सपेंस वाउचर्स ऑलरेडी ऑडिटेड एंड सेटल्ड, ये सब कैटेगरी सी रिकॉर्ड है। उसको 1 to 3 ईयर से रिटर्न करेंगे और उसके बाद वीड आउट होगा, ठीक है। वीडिंग आउट कैटेगरी सी रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, रिव्यूड एनुअली और एज पर डिपार्टमेंटल शेड्यूल, वीडिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय रिकॉर्ड्स ऑफिसर, डिस्ट्रॉयड कॉन्फिडेंशियली, श्रेडिंग और इंसाइनरेशन इफ सेंसिटिव एज पर पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट को याद रखिए 1993, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप तो अभी चल रहा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, और एक है रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बाय DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसका भी रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, ठीक है। चलो अभी देखेंगे द अब्रेविएशन UO नोट रिफर्स टू, ये UO नोट क्या होता है? ये एक अनऑफिशियल ओपिनियन नोट है, यूज्ड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस विथ ए फाइल नंबर। एक इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है, उसमें फाइल नंबर मेंशन होता है। ये एक अनऑफिशियल ओपिनियन नोट है, इसको बोलते हैं अननंबर्ड ऑफिशियल नोट भी बोलते हैं, अननंबर्ड ऑफिशियल नोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी हम देखेंगे। EO note in central government department, it is also called unnumbered office note और मोर कॉमनली अनऑफिशियल नोट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल है, यूज्ड विद इन और बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइमरली फॉर सीकिंग कमेंट्स, कंकरेंस और इनफॉर्मल ओपिनियन फ्रॉम अनदर ऑफिसर, सेक्शन और मिनिस्ट्री विदाउट गोइंग थ्रू द फॉर्मल चैनल ऑफ ए साइंड नोट और लेटर। इसमें कोई फॉर्मल चैनल में हम नहीं जाएंगे, फॉर्मल चैनल में जाएंगे तो साइंड नोट होना चाहिए, साइंड लेटर होना चाहिए, मगर ऐसा ही यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। तो ये जो अननंबर्ड ऑफिस नोट होता है, कोई सपोज कोई ओपिनियन चाहिए, सपोज अदर डिपार्टमेंट का ऑफिसर से हमको कुछ ओपिनियन चाहिए, कि अदर सेक्शन का ऑफिसर से हमको कुछ ओपिनियन चाहिए, कि अदर सेक्शन से हमको ओपिनियन चाहिए, तो हम ये कम्युनिकेशन एक करेंगे, ये लेटर ये ऑफिशियल नोट होगा, अननंबर्ड ऑफिस नोट इसको कहा जाता है। तो इसमें कोई एक फॉर्मल लेटर जैसा एक साइन होगा और नोट प्रिपेयर होगा, ठीक है, उसमें साइंड होगा, ये सब नहीं है। जस्ट एक हमको कम्युनिकेशन चाहिए अदर सेक्शन से, कि अदर सेक्शन का ऑफिसर से, ये अननंबर्ड ऑफिशियल नोट इसको कहा जाता है, ठीक है। कॉमन यूज केसेस हम देखेंगे जो अननंबर्ड ऑफिशियल नोट का, सीकिंग फाइनेंशियल कॉन्करेंस फ्रॉम द इंटरनल फाइनेंशियल डिवीजन। सपोज IFD से हमको कुछ फाइनेंशियल कॉन्करेंस चाहिए, तो हम उसमें इस तरीके का अननंबर्ड ऑफिशियल नोट देंगे, फिर उससे जवाब आने के बाद IFT इंटरनल फाइनेंस डिवीजन से हमको अप्रूवल मिलने के बाद हम साइंड लेटर इशू करेंगे, फॉर्मल लेटर इशू करेंगे, फॉर्मल नोट इशू करेंगे, ठीक है। कि कोई लीगल ओपिनियन चाहिए लॉ मिनिस्ट्री से, हम एक कम्युनिकेट कर रहे हैं और लॉ मिनिस्ट्री से एक लीगल ओपिनियन, कि इनफॉर्मल वेटिंग ऑफ ड्राफ्ट्स बाय अदर डिपार्टमेंट्स, कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस बिफोर फॉर्मल इशू, अभी फॉर्मल लेटर इशू नहीं किया है, अभी एक हम कंसल्ट कर रहे हैं अदर डिपार्टमेंट से, फिर कंसल्ट करने के बाद ही हम फॉर्मल लेटर इशू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, what should be done when an officer goes on long leave and files are pending with him? सपोज एक ऑफिसर लॉन्ग लीव में जा रहा है और उसके पास फाइल्स है एंड फाइल्स आर पेंडिंग विथ हिम, तो उसको हम हैंड ओवर करके जाएंगे, फाइल्स आर हैंडेड ओवर टू अनदर ऑफिसर बाय प्रॉपर हैंडिंग ओवर। तो लॉन्ग लीव में जा रहे हो मीन्स आप प्रॉपर वे में उसको अनदर ऑफिसर को हैंड ओवर करके जाना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, in the context of file numbering, which of the following is the correct sequence? जब फाइल का नंबरिंग होता है तो उसका क्या सीक्वेंस है? सेक्शन, ईयर, फाइल नंबर, मिनिस्ट्री, फाइल नंबर, सेक्शन, फाइल नंबर, ईयर, मिनिस्ट्री, फाइल नंबर, मिनिस्ट्री, सेक्शन। तो उसका जो नंबरिंग होता है करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन ए, सेक्शन, ईयर, देन फाइल नंबर, ठीक है। सेक्शन, ईयर, देन फाइल नंबर, इस तरीके से एक्चुअली प्रॉपर सीक्वेंस में नंबरिंग किया जाएगा कंटेस्ट ऑफ फाइल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ए फाइल इज सेंट टू अनदर सेक्शन और ऑफिसर, दिस द एक्शन इज रिकॉर्डेड इन द,
सपोज एक फाइल को हम अनदर सेक्शन को सेंड करेंगे कि अनदर ऑफिसर को सेंड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, इश्यू रजिस्टर, पियन बुक। वो हम इसमें जब व्हेन ए फाइल इज सेंड टू अनदर सेक्शन और ऑफिसर, द एक्शन इज रिकॉर्डेड इन द मूवमेंट रजिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो व्हेन ए फाइल इज सेंड टू अनदर सेक्शन ऑफिसर, द एक्शन इज रिकॉर्डेड इन द मूवमेंट रजिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइल क्रिएशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज? जब फाइल को क्रिएट आप करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप क्या है ना? ऑप्शन सी, रजिस्टरिंग इट इन द पर्सनल रजिस्टर। एक पर्सनल रजिस्टर में आप फर्स्ट आगे रजिस्टर करेंगे, ओके, कि एक नंबरिंग देके रजिस्टर करेंगे, ये फाइल जो क्रिएट किया जा रहा है इसी रिलेटेड में, तो हम इजीली हम उसको असेस कर पाएंगे। जब हम सर्च करेंगे इजीली पर्सनल रजिस्टर को जाएंगे और चेक कर देंगे, तो इसमें क्लियरली मेंशन है इसी नंबर का फाइल इसमें इसी रिलेटेड का मैटर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ए फाइल शुड बी क्लोज्ड व्हेन? कब एक फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा? जब ऑल एक्शन ऑन इट हैज बीन कंप्लीटेड। जब जो फाइल ओपन हुआ था उसी रिलेटेड जो भी मैटर है, जब सभी एक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पर्सनल रजिस्टर मेंटेन बाय डीलिंग असिस्टेंट? तो जो पर्सनल रजिस्टर डीलिंग असिस्टेंट मेंटेन करता है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यही है, टू मेंटेन डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्शंस टेकन ऑन देम। जो हम जो रिसिप्ट करते हैं, जो लेटर हम रिसीव कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन, उसका जवाब दे रहे हैं, वही बेसिकली पर्सनल रजिस्टर का मेन फंक्शन है। तो पर्सनल रजिस्टर में क्लियरली मेंशन होता है कि इस रजिस्टर इसके लिए है। तो कोई लेटर हम रिसीव करेंगे, सपोज पर्टिकुलर रिलेटेड, सपोज कोई पॉलिसी के ऊपर एक फाइल है, मेंशन है पर्सनल रजिस्टर में, तो कोई लेटर हमको रिसीव हुआ तो वही हम चेक करेंगे पर्सनल रजिस्टर में कि कौन सा फाइल है, फाइल नंबर। तो फाइल नंबर सपोज 15 है, वो रिलेटेड टू द पॉलिसी रिलेटेड है, तो उसी का लेटर आएगा तो उसके अंदर जाएगा और जवाब दिया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस द अब्रिविएशन एफटीएस स्टैंड्स फॉर? एफटीएस जो है क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डाक रिसिप्ट रजिस्टर? डाक रिसिप्ट रजिस्टर का मेन पर्पज क्या है? जो भी मेल्स और डॉक्यूमेंट्स आएगा वो सब रिकॉर्ड होगा उसमें, डाक रिसिप्ट रजिस्टर में, टू रिकॉर्ड ऑल इनकमिंग मेल्स और डॉक्यूमेंट्स। जितना इनकमिंग मेल्स आएगा, डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसको मेंटेन रिकॉर्ड किया जाएगा डेट देकर। ठीक है, और वो कौन सा सेक्शन के लिए आया है तो सब क्लियरली मेंशन होगा, वो डाक रिसिप्ट रजिस्टर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 34, ये रिमाइंडर्स रजिस्टर इज यूज्ड टू? तो ये जो रिमाइंडर रजिस्टर होता है, तो ऑप्शन बी, मेंटेन डिटेल्स ऑफ फॉलोअप्स ऑन पेंडिंग कम्युनिकेशंस। कोई पेंडिंग कम्युनिकेशन है उसको फॉलो अप करने के लिए एक रिमाइंडर रजिस्टर होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर रजिस्टर हमको याद दिला देगा, रिमाइंड कर देगा कि ये पेंडिंग एक्शन है, उसको फॉलो अप कीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द यूजुअल कलर ऑफ द फाइल कवर यूज्ड फॉर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस? ये कॉन्फिडेंशियल फाइल होता है, तो फाइल कवर का क्या कलर होगा? तो रेड कलर होगा। रेड कलर का फाइल मींस वो कॉन्फिडेंशियल फाइल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ ए कम्युनिकेशन इज मार्क्ड इमीडिएट, व्हाट इज इट्स इंप्लीकेशन? यदि कम्युनिकेशन कोई डाक आया है उसमें इमीडिएट मेंशन है, तो इसका मेन इंप्लीकेशन है, इट मस्ट बी डेल्ट विथ ऑन द सेम डे। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन इमीडिएट मीन्स सेम डे हम उसको बेसिकली उसके ऊपर जवाब देंगे, सेम डे में उसको डील करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ए स्टैंडिंग गार्ड फाइल? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल में क्या है, जो फाइल में हम मेंटेन करते हैं, कुछ सर्कुलर से, इंस्ट्रक्शन से, सभी चीज जो है वो स्टैंडिंग गार्ड फाइल में रहेगा। तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फाइल मेंटेन फॉर रेगुलरली रिफर्ड
सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस, ये एक स्टैंडिंग गार्ड फाइल एक रिफरेंस होता है। सपोज आप कुछ रिलेटेड मैटर में आप पूछ रहे हो ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर, कि आप टूर रिलेटेड, सपोज दिल्ली अलाउंस, कि आप एलटीसी, तो उसको हम रिफर करेंगे स्टैंडर्ड गार्ड फाइल, क्योंकि उसमें सब कुछ हम रिफर करके रखे हैं कि एलटीसी रिलेटेड चीज इसमें है, रेफरेंस है, कि लीव के ऊपर रेफरेंस है, कि टीए के ऊपर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर है, कि टीटीए ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर है। तो उसमें इजीली हम उसको रिफर करेंगे स्टैंडिंग गार्ड फाइल, और उसमें हमको आंसर मिल जाए, क्योंकि उसमें सभी सर्कुलर से इंस्ट्रक्शन है वो फाइल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग गार्ड फाइल इज रेफरेंस फाइल मेंटेन्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कंटेनिंग इंपोर्टेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस आता है हेडक्वार्टर से, हम स्टैंडिंग गार्ड फाइल में रखेंगे। सर्कुलर्स आता है, रूल्स गाइडलाइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, कोई सर्कुलर रूल गाइडलाइन, उसको रेफरेंस के हिसाब से हम स्टैंडिंग गार्ड फाइल में रखेंगे। ठीक है, दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन डे टू डे वर्क। ठीक है, तो टू प्रोवाइड क्विक एंड रेडी एक्सेस टू एसेंशियल रेफरेंस मटेरियल ऑन रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रिलेटेड में हमको रेफरेंस चाहिए तो हम स्टैंडिंग गार्ड फाइल में जाएंगे, क्योंकि वहां पर सभी इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज, गाइडेंस, गाइडलाइंस, रूल्स, डिटेल्स, उसका जो भी सर्कुलर आता है उसमें है, तो उसको हम रिफर करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 38, अन ऑफिस ऑर्डर इज जनरल इशूड। अच्छा, ऑफिस ऑर्डर कब है? तो जनरली आप देखा होगा ऑफिस ऑर्डर, सपोज आप अभी टूर में जा रहे हो, सपोज आप टूर में जाओगे, कि सपोज ट्रेनिंग के लिए जाओगे, कि आपका ट्रांसफर हो गया, कि आपको कुछ चार्जेस दिया गया, डिपार्टमेंट में डिफरेंट चार्जेस दिया जाता है एम्प्लॉइज को, ये सब ऑफिस ऑर्डर दिया जाएगा इस केस में। सपोज आप टूर में जा रहे हो, कि ट्रेनिंग में जा रहे हो, कि ट्रांसफर आपका हुआ, कि कोई चार्जेस आपको असाइन किया गया, कि आप ये सेक्शन का हेड हो, इसी को आपको मैनेज करना है, तो ये सब चीज वो ऑफिस ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। डील विथ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज, नो। कन्वे डिसीजंस रिक्वायरिंग पर्सनल अटेंशन, इश्यू इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यही होगा। इश्यू इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, अनाउंस इलेक्शंस, नो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं अभी बताया ऑफिस ऑर्डर कब होता है, जब आपको सपोज कुछ असाइनमेंट मिला कि आप ये चार्ज को आप हैंडल करोगे, ऑफिस ऑर्डर होगा। आप टूर में जा रहे हो, ऑफिस ऑर्डर होगा, ऑफिस ऑर्डर में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप सपोज आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, आपको ऑफिस ऑर्डर में दिया जाएगा कि आपको जाकर वो ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, ये सब ऑफिस ऑर्डर है। क्लियर? तो उसमें देख लीजिए, एन ऑफिस ऑर्डर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू कम्युनिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रिलेटेड टू पोस्टिंग्स। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ऑफिस ऑर्डर, कि आपको कुछ ड्यूटीज दिया गया, ऑफिस ऑर्डर। ट्रांसफर आपका हुआ तो आपको ऑफिस ऑर्डर दिया जाएगा, ऑफिस ऑर्डर से आपको रिलीव किया जाएगा। लीव, प्रमोशंस, कोई स्पेशल लीव आपको दिया गया ऑफिस ऑर्डर में, प्रमोशंस हुआ, आपको ऑफिस ऑर्डर में इन्फॉर्म किया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन, ऑफिस ऑर्डर, और अदर इंटरनल मैटर्स। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जब होता है ओके डिपार्टमेंट में, वो ऑफिस ऑर्डर में इन्फॉर्म किया जाता है। क्लियर? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस ऑर्डर्स देख लीजिए। असाइनमेंट, कोई एडिशनल चार्ज आपको दिया गया, ऑफिस ऑर्डर में दिया जाएगा। कोई स्पेशल ग्रांट ऑफ लीव दिया गया स्पेशल केसेस में, ऑफिस ऑर्डर में दिया जाएगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर, कोई आपको ट्रांसफर कर दिया गया और आपका पोस्टिंग और एक हेडक्वार्टर में दे दिया गया, ऑफिस ऑर्डर में इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई इंटरनल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसको ऑफिशियल ऑर्डर में इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और सस्पेंशन, ये भी ऑफिशियल ऑर्डर में इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, कि आपको सस्पेंड किया गया इस रीजन की वजह से। और नॉमिनेशन फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सपोज आपको नॉमिनेट किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपको ऑफिस ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जाकर ये ट्रेनिंग ज्वाइन करो। तो ये सब ऑफिस ऑर्डर्स में इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक लॉग बुक होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए लॉग बुक? लॉग बुक क्या होगा? आप देखा होगा आपका व्हीकल है, सपोज हायरिंग व्हीकल है, कितना माइलेज वो कवर किया, तो वो सब लॉग बुक में मेंशन होता है। तो पर व्हीकल यूसेज ट्रैकिंग, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके हिसाब से पेट्रोल की डीजल इशू होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट करता है, तो ये सब लॉग बुक में मेंशन होता है।
ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, what action is taken when a file is to be destroyed as per record retention schedule? record retention schedule के हिसाब से what action is taken when a file is to be destroyed? फाइल को डिस्ट्रॉय करना है रिकॉर्ड रिटेंशन के हिसाब से, तो फर्स्ट उसको ऑप्शन सी देखिए, इट इज थ्रेडेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल एंड मेक एन एंट्री इन द फाइल डिस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये है, फर्स्ट अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल करने के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको एंट्री किया जाएगा, एक फाइल डिस्ट्रक्शन रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ए नोट फॉर अप्रूवल इज जनरली सबमिटेड टू, तो किसको सबमिट किया जाएगा? एक नोट आप लिखा, मैं बताया हम नोट कब लिखते हैं, नोट शीट। सपोज हम आपको सपोज हायर अथॉरिटी का ओपिनियन चाहिए, हायर अथॉरिटी का सजेशन चाहिए, ठीक है, तो हायर अथॉरिटी का डिसीजन चाहिए कुछ रिलेटेड मैटर में, तब हम नोट शीट इशू करेंगे, और उसका हायर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, हायर अथॉरिटी का रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। ये नोट फॉर अप्रूवल इज जनरली सबमिटेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एंड करेक्टिंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग डन बाय द डीलिंग हैंड? मैं बताया था अभी, जैसे कोई जूनियर ऑफिसर ने कुछ ड्राफ्टिंग किया, तो वो जूनियर ऑफिसर जो ड्राफ्टिंग कर दिया वो फिर सीनियर ऑफिसर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। सीनियर ऑफिसर उसको चेक करेगा वो ड्राफ्ट को, क्या वो लैंग्वेज सही है कि नहीं, क्या वो फैक्ट सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो ये सब चेक करने के बाद वो अप्रूवल करेगा, फिर अप्रूवल करने के बाद वो साइन होगा, इशू होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब जूनियर ऑफिसर एक्चुअली कोई डीलिंग असिस्टेंट उसको इट मींस सॉरी जो डीलिंग असिस्टेंट एक्चुअली मेंटेन ड्राफ्टिंग करता है, उसको वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, सेक्शन ऑफिसर उसको अप्रूवल करेगा, सेक्शन ऑफिसर उसका लैंग्वेज, उसका फैक्ट, उसको सब चेक करेगा, उसमें मॉडिफाई करेगा, फिर वो जाकर साइन होकर इशू होगा, ओके, फॉर्मल लेटर के आकर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चेकिंग करेक्शन सेक्शन ऑफिसर। चलो 43, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलोड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस? स्टैंडर्ड फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, chronological, alphabetical, functional, subject wise classification, numeric index only. Option C, standard file classification system followed in central government offices, functional, subject wise classification. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज ए फेयर कॉपी? फेयर कॉपी क्या है? जैसे ड्राफ्ट तो जूनियर डीलिंग असिस्टेंट बना दिया, तो वो बनाने के बाद वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, सेक्शन ऑफिसर उसको करेक्ट करेगा, उसमें मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई करने के बाद इट मींस वो वही फेयर होगा। सेक्शन ऑफिसर उसमें लैंग्वेज को चेक करेगा, फैक्ट को चेक करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाएगा, फिर वो साइन एंड इशू होगा। तो ऑप्शन बी, ए फाइनल नीटली टाइप्ड एंड करेक्टेड वर्जन ऑफ ए कम्युनिकेशन इज द फेयर कॉपी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफिस प्रोसीजर द टर्म एक्स पार्टी मीन्स, एक्स पार्टी में क्या है? अदर पार्टी को हम नहीं सुनेंगे, अदर पार्टी को नहीं सुनेंगे, एक पार्टी का फॉर में डिसीजन चला जाएगा, वही एक्स पार्टी है, एक पार्टी के फेवर में डिसीजन लिया जाएगा, अदर पार्टी को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आंसर मिल गया ऑप्शन सी है, डिसीजन टेकन विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, अदर पार्टी को हम नहीं सुनेंगे, ओके, एक पार्टी का फेवर में चला जाएगा, वो एक्स पार्टी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ए ड्राफ्ट बिकम्स एन इशू व्हेन इट इज, ऑप्शन सी, फेयर कॉपीड, साइंड एंड डिस्पैच्ड। तो एक ड्राफ्ट को फिर फेयर किया जाएगा, ओके, ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा सपोज एक जूनियर ऑफिसर, वो फिर सीनियर ऑफिसर के पास जाएगा, फिर फेयर होगा, साइन होगा, फिर डिस्पैच होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47, द टर्म फ्लैगिंग इन फाइल मूवमेंट, जब फाइल मूवमेंट होगा उसमें फ्लैगिंग होगा, आप देखा होगा, तो टैग उसको अटैचिंग टैग्स टू इंडिकेट रिलेटेड पेपर्स और रेफरेंसेस। सपोज आप टैग किया है पर्टिकुलर मैटर में, तो जब आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे साइन के लिए, वो फ्लैगिंग ऑलरेडी है, वो टैग ऑलरेडी लगा है, आप इमीडिएटली ओपन करेंगे, वो टैग को चेक करके और रिफरेंस करेंगे कि इसी रिफरेंस से एक्चुअली ये खरीदा गया और आपका यहां पर साइन चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अर्जेंट क्लासिफिकेशन इज नॉर्मली वैलिड फॉर हाउ मेनी वर्किंग डेज। जो अर्जेंट क्लासिफिकेशन होता है तो वो उसका नॉर्मल वैलिडिटी कितना दिन होगा? 5 होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अर्जेंट क्लासिफिकेशन इज नॉर्मली वैलिड फॉर 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 को चलेंगे। एनक्लोजर तो बहुत कॉमन है, कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वही एनक्लोजर है। आप कोई भी सपोज लेटर में कुछ एनक्लोज कर रहे हो तो आप एनक्लोजर में लिखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट आप उसके साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो। तो एनक्लोजर मीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50 को चलेंगे। व्हेन ए फाइल इज पुट अप टू ए हायर अथॉरिटी विद रिकमेंडेशंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। हम हायर अथॉरिटी के पास एक फाइल हम लेकर जाएंगे, हायर अथॉरिटी का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। वो फाइल लेकर हम हायर अथॉरिटी के सामने रखेंगे रिकमेंडेशन के लिए। ये प्रोसेस को हम सबमिशन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द रजिस्टर यूज टू रिकॉर्ड इनकमिंग डाक। इनकमिंग डाक, जो डाक आ रहा है, इनकमिंग डाक को बहुत ईजी है, रिसिप्ट रजिस्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 52, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर डाक इज रिसीव्ड इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब डाक हम रिसीव किया उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? उसको ओपन करेंगे और डेट स्टाम्पिंग करेंगे, ठीक है। इमीडिएटली डिस्पैच नहीं करेंगे, उसको ओपन करके उसको डेट स्टाम्प लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 53, which officer is primarily responsible for ensuring proper डाक distribution in a section। कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, वो किसका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर, ओके। उसका मेन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डाक आया वो डाक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं सेक्शन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अर्जेंट और टाइम सेंसिटिव डाक इज यूजुअली मार्क्ड एज। जो अर्जेंट है कि टाइम सेंसिटिव डाक है उसमें क्या मार्क किया जाएगा? इमीडिएट और मोस्ट इमीडिएट मार्क किया जाएगा, ठीक है। ये मार्क किया गया मींस उसी दिन, हम वर्किंग आवर वहां पर नहीं देखेंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग आवर्स इट मस्ट बी हैंड ओवर टू द एड्रेस। जिस एड्रेस के नाम पे आया है हम वर्किंग आवर्स नहीं देखेंगे, उसी दिन ही उसको हैंड ओवर, एड्रेसी को हैंड ओवर करना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सपोज डाक रिसिव्ड, नॉर्मली डाक रिसिव्ड आफ्टर ऑफिस आवर, ऑफिस आवर के बाद डाक रिसीव हुआ तो उसको रिकॉर्डेड द नेक्स्ट वर्किंग डे, क्योंकि ऑफिस आवर्स के बाद डाक रिसीव हुआ तो रिकॉर्डेड द नेक्स्ट वर्किंग डे। मगर जब इमीडिएट जो डाक होता है तो कोई वर्किंग आवर्स हम नहीं देखेंगे, इमीडिएटली एड्रेसी को हैंड ओवर करेंगे। मगर यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन दे दिया, डाक रिसीव्ड आफ्टर ऑफिस आवर्स इज रिकॉर्डेड द नेक्स्ट वर्किंग डे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, हु मेंटेन्स द डाक रिसिप्ट रजिस्टर। ये जो डाक रिसिप्ट रजिस्टर है उसको मेंटेन कौन करेगा? क्लर्क इन द सेंट्रल रजिस्ट्री। जो सेंट्रल रजिस्ट्री का क्लर्क है वो मेंटेन करेगा डाक रिसिप्ट रजिस्टर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पियन बुक। पियन बुक का मेन फंक्शन क्या है? टू रिकॉर्ड डेली, ऑप्शन बी, टू रिकॉर्ड डिलीवरीज ऑफ डाक विद इन द ऑफिस। तो पियन बुक जो है वो पियन वहां पर मेंशन करेगा कि डाक को डिलीवर कर दिया गया, और वो बुक में जब लेकर जाएगा और हैंड ओवर करेगा लेटर और साइन लेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 58, व्हाट इज द फाइनल एक्शन आफ्टर डिस्पैचिंग आउट गोइंग डाक। आउट गोइंग डाक डिस्पैच जब हम कर रहे हैं, फाइनल एक्शन क्या है ना? उसको मेकिंग एन एंट्री इन द इश्यू रजिस्टर, ओके। threading the file, closing the register, making an entry in the issue register, ये ऑप्शन सी। what is the final action after dispatching outgoing डाक? it is making an entry in the issue register. option C is the correct answer. question number 59, the office responsible for receiving and sorting डाक in a ministerial department, तो रिसीव करेगा और उसको सर्टिंग करेगा वो सेंट्रल रजिस्ट्री। वो जो एक्चुअली जो ऑफिस है वो सेंट्रल रजिस्ट्री है, उसका काम है डाक को रिसीव करेगा और उसको सर्टिंग करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ डाक। डाक डिफरेंट टाइप्स होता है, इमीडिएट डाक है, ऑर्डिनरी डाक है, पेंडिंग नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, तो पेंडिंग नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ डाक? ऑप्शन सी, पेंडिंग एक कैटेगरी ऑफ डाक नहीं है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाक देखेंगे यहां पर। इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस डाक रिफर्स टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफिशियल मेल और कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफिशियल मेल कॉरेस्पॉन्डेंस को भी हम डाक बोलेंगे, ये डेफिनेशन को याद रखिए। कोई इनवर्ड और आउटवर्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कुछ लेटर्स, कुछ लेटर आ रहा है, कुछ लेटर जा रहा है, कुछ मेल्स आ रहा है, हम कुछ मेल्स भेज रहे हैं, वो सब डाक में जाएगा। ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, लेटर्स, फाइल्स, पार्सल्स और डिजिटल कम्युनिकेशंस हम रिसीव कर रहे हैं कि डिस्पैच कर रहे हैं, वो सब डाक में आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अभी देखेंगे, यहां पर देखिए टाइप ऑफ डाक दिया है। इनवर्ड डाक, डाक आ रहा है ऑल लेटर्स, फाइल्स, पार्सल्स एटसेट्रा रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट्स, वो इनवर्ड डाक है, बहुत वेरी इजी है। आउटवर्ड डाक, जो लेटर हम सेंड कर रहे हैं, ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू अदर्स, आउटवर्ड डाक है। ऑर्डिनरी डाक, कोई ऑर्डिनरी मीन्स नॉन कॉन्फिडेंशियल, रूटीन मेल है, जो रूटीन मेल है वो ऑर्डिनरी डाक है। और एक आता है कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डाक, डाक कंटेनिंग सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मैंने मार्क किया गया है कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट उसमें, तो वो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डाक है। और एक इमीडिएट और अर्जेंट डाक है, इसमें इमीडिएट और अर्जेंट मेंशन हुआ है। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, इमीडिएट अर्जेंट मींस प्रॉम्प्ट एक्शन, इमीडिएटली एड्रेस को वर्किंग आवर्स नहीं देखेंगे, हम हैंड ओवर करेंगे। फैक्स और मेल, जो फैक्स मेल, हम फैक्स आ रहा है, फैक्स भेज रहे हैं, कुछ मेल रिसीव कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, वो सब डाक में जाएगा। पर्सनल डाक है, लेटर्स एड्रेस टू इंडिविजुअल्स, यूजुअली अनऑफिशियल लेटर्स हम रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो सब पर्सनल में जाएगा। नेक्स्ट वन रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट डाक, ये तो वेरी कॉमन है। ई डाक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई डाक में क्या है, डिजिटल डाक रिसीव्ड वाया प्लेटफॉर्म, ई ऑफिस। अभी देखिए, अभी सब सॉफ्टवेयर में हम एक्चुअली ऑल ऑफिस रिकॉर्ड्स को हम सॉफ्टवेयर में रखे हैं, अभी हार्ड कॉपी नहीं है। अभी सभी ऑफिस रिकॉर्ड को हम ई ऑफिस बना चुके हैं। ई ऑफिस जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का हेल्प लेके हम ई ऑफिस बना चुके हैं, और ऑल रिकॉर्ड्स एक्चुअली नाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कीपिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ई ऑफिस है, ईमेल है, और सीपी ग्राम से सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस, ये जो सीपीजी है ना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें ये जो इसका डेफिनेशन आप लिख देता हूं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक, पी में, जी फॉर ग्रीवेंस, ठीक है, ग्रीवेंस, आर फॉर रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म। तो ये सब ई डाक में आएगा। कोई ई ऑफिस अभी सॉफ्टवेयर में अभी सभी रिकॉर्ड्स हम ऑफिशियल रिकॉर्ड को रखेंगे, तो वहां पे सपोज हम कुछ मेल रिसीव कर रहे हैं और मेल दे रहे हैं, वो आएगा। ईमेल तो कॉमन है। और ये जो आ गया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बताया, जो सिफीग्राम्स क्या है ना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस, ओके, रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इसमें कुछ मेल हमको रिसीव हुआ, कुछ सपोज कोई ग्रीवेंस हमको क्लैरिफाई करना है, ये सब मेल आता है। सपोज हम सपोज कुछ मेल देंगे इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में, हमको उसमें रिड्रेसल चाहिए, तो ये सब जो है ई डाक में आ जाता है। ठीक है, ई डाक को देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट शुड बी डन इफ एन एनवलप कंटेन्स मल्टीपल लेटर्स एड्रेस टू डिफरेंट ऑफिसर्स। एक एनवलप में मल्टीपल लेटर्स है डिफरेंट ऑफिसर्स के लिए, तो ऑप्शन सी, सेपरेट एंड फॉरवर्ड टू द कंसर्न ऑफिसर्स, उसको सेपरेट करेंगे और कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। 62, डाक ऑफ हाईली सेंसिटिव नेचर इज ऑफन डिलीवर्ड थ्रू। जब एक डाक हाईली सेंसिटिव नेचर है, उसको हम एक पर्सनल डिलीवरी बाय ट्रस्टेड स्टाफ, जो जिस स्टाफ के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं उसके द्वारा उसको पर्सनल डिलीवरी करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 63, इन ई ऑफिस सिस्टम द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल डाक इज कॉल्ड, ई डाक बोलते हैं। जो ई ऑफिस सिस्टम में द डिजिटल इक्विवेलेंट, हम फिजिकल डाक की तरह हम ई ऑफिस सिस्टम में हम रिसीव करते हैं, ठीक है, मेल, और हम सेंड करते हैं, वो सब ई डाक में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
64 द स्लीप अटैच टू डाक इंडिकेटिंग इट्स प्रायोरिटी लेवल। जैसे एक स्लीप होता है वो इमीडिएट है कि कॉन्फिडेंशियल है, इस तरीके का स्लीप, तो इसको डार्क स्लीप बोलेंगे। ओके, वो स्लीप क्लियरली मेंशन होगा कि इमीडिएट अर्जेंट डार्क है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो डार्क स्लीप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिसीव्ड बाय मिस्टेक। सपोज हम मिस्टेकन बाय मिस्टेक एक्चुअली वी रिसीव द डार्क, रॉन्ग डिपार्टमेंट का डार्क हमारे पास आ गया, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे टू अनदर destroy it, return to central registry for redirection, forward to another random department, no, return to central registry for redirection। हम उसको रिटर्न कर देंगे सेंट्रल रजिस्ट्री को, वो फिर रीडायरेक्ट करेगा, एक्चुअल डिपार्टमेंट को भेजेगा। तो ये 65 क्वेश्चंस था और इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा ऑफिस प्रोसीजर के ऊपर। इसमें बहुत कुछ चीज, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, नोट, नोट सीट, डेमी ऑफिशियल लेटर, अननंबर्ड ऑफिशियल लेटर, ये सभी ओनली ऑफिशियल लेटर, तो ये सब मैं डिस्कस किया। ठीक है, तो डाक के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया। तो मेरा सेकंड पार्ट को आप वेट कीजिए, फिर ऑफिस प्रोसीजर में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इतना ही है। प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. Please subscribe my channel. Thank you and namaskar to all of you.